Next is integration by partial fraction. This is quite important topic and maximum question comes from this exercise. Now there are 5 forms given in NCERT, out of which you have to reduce the form rational to the form of partial fraction and then integrate. It's quite simple. फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, अगर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, यू हैव टू रिड्यूस इट एज ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी. If it is px plus q upon x minus a whole square, then you have to reduce it a over x minus a plus b over x minus a whole square. If it is p square plus qx plus r, इस फॉर्म में है x minus a, x minus b, x minus c, you have to take 3 variable a x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c, and then fourth form is px square plus qx plus r, then x minus a whole square or x minus b. If it is in this format, then you have to write a over x minus a plus b over x minus a whole square plus c over x minus b. And the last type is, if it is px square plus qx plus r, then you have to write x minus a, x square plus bx plus c, a over x minus a plus bx plus c over x square plus bx plus c. So these are the 5 forms of a rational function as well as 5 forms of transforming into partial fraction. Let me do the question. Questions are quite simple, easy. First question is integrate a rational function. Function is given x over x plus 1, x plus 2. So if you see, this is our type 1. In type 1, it is of the form of p x plus q over x minus a x minus b. तो reduce करना है a over x minus a plus b over x minus b. So what we will write here, जो integrate given है x over x plus 1 x plus 2, इसको लिख लिया a upon this plus b upon this. This is type 1. Now you can check what will be x. ये ऊपर जाएगा तो x plus 1 कैंसिल हो गया. और you can take the LCM. LCM से अगर आप देखोगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 रह जाएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा. Now again you have to equating the coefficient of various powers of x and constant terms. यहाँ से है ax और यहाँ से है bx, तो a प्लस b x का बना, इधर x का है 1. सो a प्लस बी इज 1. कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है 2a प्लस बी, इधर कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो कोई नहीं है, 0. सो 2a प्लस बी इज 0. ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस a विल बी -1, b विल बी 2. नाउ अगेन रिड्यूस दिस रैशनल फंक्शन x ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 dx क्या बन गया, a upon x plus 1, a means -1 over x plus 1 dx plus b is 2 over x plus 2 dx. तो ये माइनस बार आ गया, ये इसका डेरिवेटिव होगा log ऑफ x plus 1. x का तो 1 है तो अपॉन 1 आएगा या ना लिखो. देन 2 अपॉन x plus 2 तो कॉन्स्टेंट है, बार हो गया, x plus 2 log of x plus 2 plus constant. So this will be the integration. Next is type 2, when you are given square in denominator 3x minus 1 over x plus 2 whole square. So this can be written as a over x plus 2 plus b over x plus 2 whole square. Integrate is equal to a upon x plus 2 plus b upon x plus 2 whole square. Similarly, you may check when you take LCM, it will be a into x plus 2 plus b 3x minus 1, ये कैंसिल हो जाएगा LCM के साथ. So equating the coefficient of various powers of x and constant terms. So यहाँ से बनेगा ax, बस x और नहीं बनेगा, यहाँ से x का है 3. So a is equal to 3.
कांस्टेंट टर्म यहाँ से बनी 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, इधर कांस्टेंट टर्म है -1, सो -1, a की वैल्यू पुट कर दी तो b आ गया -7, a एंड b आ गए, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b हेयर एंड इंटीग्रेट, सिंपल। लॉग ऑफ x प्लस 2, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी लॉग ऑफ 1/x प्लस 2 होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1/x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ लॉग ऑफ x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 7/x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट। देन थर्ड टाइप इज व्हेन यू आर गिवन, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं, सो इट इज़ 2x ओवर x स्क्वायर -1 2x प्लस 3। क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रेट दिस इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो 2x माइनस 3 इसको लिख लिया x प्लस 1, x माइनस 1 फॉर्मूला लगा दिया 2x प्लस 3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस, a upon x plus 1 plus b upon x minus 1 plus c upon x minus 2x plus 3. So again take LCM. So this is 2x minus 3, this is equal to, जब LCM लेंगे ये यहाँ जाएगा तो a के साथ बचेंगे x minus 1 2x plus 3, b के साथ x plus 1 2x plus 3, c के साथ x plus 1 x minus 1. So again coefficient of equation, equating the coefficient of x square, x and constant term, you will find 3 equations, 2a plus 2b plus c 0, a plus 5b 2, minus 3a plus 3b minus c minus 3, from where you can calculate the value of abc and substitute the values of abc here. After substituting the values, you will find 5/2 constant है तो log of x plus 1 हो गया, log of x minus 1 हो गया, और 2x प्लस 3 है तो log of 2x माइनस 3 होगा, कोफिशिएंट्स एज इट इज़ आगे। सो यू इन दिस वे यू कैन सॉल्व टाइप 3। फोर्थ टाइप इज व्हेन यू आर गिवन, नीचे एक स्क्वायर गिवन है, सो इट विल बी टाइप 4 इन विच वन इज स्क्वायर एंड वन इज linear. So a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 whole square plus c upon x plus 2, a upon this, b upon this square, c upon x plus 2, rest is the same. Find the value of x will be a into x minus 1 रह जाएगा और x plus 2 रह जाएगा, b के साथ ये और ये रह जाएंगे, x minus 1 होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये रह जाएगा सिर्फ x plus 2, c के साथ x minus 1 whole square रह जाएगा. So again similar way you will find the value of ABC. After finding the value of ABC, put the values of ABC in here in fraction form, and then you may integrate them. The integration is simple, log of x minus 1 या 1 x minus 1 whole square की चेंज होगी बस, minus 1 upon x minus 1, 1 by x plus 2 की इंटीग्रेशन x plus 2, कॉन्स्टेंट्स जो है वो एज इट इज लगे रहेंगे साथ. देन टाइप 5th इज व्हेन यू आर गिवन एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, सो a अपॉन x माइनस 1 क्वाड्रेटिक के लिए bx प्लस c ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, रेस्ट इज सेम, 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, bx प्लस c इंटू दिस, then equating the coefficients. Now type 5th is one is linear and other is quadratic. This I have told you that on comparing a x square बचा और इधर से b x square बचा विद माइनस, तो x स्क्वेयर a माइनस b हो गया, x स्क्वेयर का कोफिशिएंट और उधर x स्क्वेयर का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है तो 0. लीनियर के लिए x के लिए यहाँ से a बचेगा, a इंटू एक्स, a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 2, और इधर से x का बचेगा b माइनस सी एक्स बचेगा, b माइनस सी, तो ये भी 0 हो गए, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है वो a प्लस सी 2 आ गई, तो a1 b1 c1. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हेयर, 1 bx प्लस सी की जगह b की जगह 1,
c1 over 1 plus x square. Now integrate. When you integrate 1 upon 1 minus x dx प्लस इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 over 1 plus x स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा log of 1 plus x स्क्वेयर. मतलब ऊपर जो है वो डेरिवेटिव है और नीचे जो है वो फंक्शन है. इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? log of फंक्शन. log of फंक्शन इट मीन्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन 2x है, तो log ऑफ फंक्शन आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की होगी टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. यू हैव टू इंटीग्रेट cos x over 1 minus sin x 2 minus sin x. So let we take sin x u, then cos x dx will become du. तो cos x dx इंटीग्रेट जो दिया हुआ इंटीग्रेट लिख लिया. cos x dx की जगह होगा du. 1 माइनस साइन एक्स की जगह 1 माइनस यू हो गया, 2 माइनस यू हो गया. तो ये हमारे पास बन गया 1 बाई 1 माइनस यू 2 माइनस यू. फर्स्ट फॉर्म बन गई a अपॉन पहला आ गया प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर आ गया. Then same you have to write it as 1 is equal to a into ये बचेगा plus b into 1 minus u. Now comparing the coefficient of various powers of u, यहाँ पे u जो है वो क्या है? यहाँ पे u का कोफिशेंट माइनस a माइनस b. बेसिकली a और b की वैल्यूज निकाल ली. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1. यू में सिंप्लीफाई इट एज इफ यू हैव प्रॉब्लम 2a माइनस a u प्लस b माइनस b u. सो इट इज 2a प्लस b माइनस u इज कॉमन, माइनस u इज कॉमन a प्लस b. Now if you see u वाली इधर टर्म कोई नहीं है, सो इधर u वाली टर्म आई है a प्लस b और इस साइड u की कोई टर्म नहीं है 0. सो एक इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू माइनस b. सिमिलरली 2a प्लस b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 2a प्लस b कॉन्स्टेंट टर्म इधर 1 है. 2a प्लस b इज इक्वल टू 1. a की जगह माइनस b लिख सकते हैं. सो 2a माइनस 2a प्लस b की जगह माइनस a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1. सो a इज इक्वल टू 1. सो a इज इक्वल टू इफ 1 देन b इज इक्वल टू माइनस 1. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1. ये बन गया माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस यू, ये होएगा लॉग ऑफ 2 माइनस यू आफ्टर इंटीग्रेशन. तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ वन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. फर्स्ट इज लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. यू मे राइट इट एज लॉग ऑफ mn. Similarly, if there is minus, then this will be log of m upon n. And third property is n log m is equal to log of m raised to power n. ये power जो है ये ऊपर चली जाती है. So these are the 3 properties of log, and we will use basically first property in many questions. तो यहाँ पे क्या बना था? log ऑफ 1 माइनस यू log ऑफ 2 माइनस यू. तो 2 माइनस यू तो ये बन गया log ऑफ m माइनस log ऑफ n. एक log इकट्ठा लिख के m अपॉन n, माइनस वाला जो है वो नीचे आ जाता है प्लस कॉन्स्टेंट. सो u की वैल्यू लास्ट स्टेप में पुट कर दी. log ऑफ 2 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स.
सो नेक्स्ट इज 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सो 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स। सिंप्लीफाई किया, इट विल बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये एलसीएम वाला, और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स को टी लिया तो डिफ्रेंशिएट किया, 1 का 0, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स का -1, तो ये प्लस हो गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो दिस टर्म रिड्यूसेस टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह आ गया डी टी, और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह आ गया टी। तो ये बन गया लॉग ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट, मीन्स लॉग ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट।